Glory to Jesus. Thank you, Lord, for this new day. Thank you, your mercy is new for us. Thank you, Lord, you have redeemed my life from the destruction and you have crowned me with your loving kindness and tender mercy. प्रभु तूने मेरे जीवन को नाश होने से बचाया है और अपनी दया और करुणा का मुकुट मेरे सर पर रखा है। तेरा धन्यवाद हो, तेरी आराधना करते हैं। आइए प्रभु यीशु मसीह की आराधना में जाएं, उसके नाम की चर्चा करें। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ला 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 ला, शकरा ला रिधा ला 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 रा रिधा लाना। जिंदा रहा ला रबा, रिभा लाला शिकेरा लबा, रिंद्रा लवा
Shikeralava Rindra Lalara Shikeralava. Oh, 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 ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. ऊंचा सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. Yes, Jesus, your name is above all name. स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे हर घुटना प्रभु जी आपके नाम के आगे झुकता है और हर जुबान अंगीकार करती है कि यीशु तू मेरा प्रभु है. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं, हमारे जीवन के उद्धार करता, मुक्ति दाता, जीवन दाता आप हैं. आप ही पुनरुत्थान और जीवन हैं. आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं और आप हमारे महान प्रेरित महायाजक हैं. आप शिरोमणि हैं प्रभु जी, आप ही सत्य हैं. आपका नाम परमेश्वर का वचन है. आप आमीन हैं, विश्वास योग्य हैं. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 आपके दिव्य वचनों के लिए. धन्यवाद 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 आपकी सनातन आत्मा के लिए, उस सत्य की आत्मा के लिए, आपके अनुग्रह की आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 हो. आइए हम कुछ देर आत्मा में प्रार्थना करें. ओरा ला 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 बशंदरी दाले निबी शिखेरे दिले ले 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 बेशिंदरा रा बाबा बारी दाले निबी शिखेरे दिले न हंदरे रिदला राबा रिकाला न हके बेरी दली न हखबरो शोखीरी दला न बशंदरी दिली निबी राब्रा रिक्लबला न बशंदरी रिदला बाबा राला न बा Orala na handari dale ne kidi na hakhbari dili na ba bari bebe keberi dili na ba shandari dili na ba rab lali lali klebala la ba shandoro dolo na handari rabana handari dili na ba shandoro ri dolo na kholo na ba shaberi bala rala na handari dale ne be shikrevedi bebe sakhoro dolo na hakhbari dali na ba Rabalana Bashandare Delene Hindari Dalinaba Rabrari Klavala la Bashindare Ridolono Kolono Kalina Hakbari Dalinaba Handari Dalinaba Shindara Balinaba Shindoro Dolonaba Shindare Delenebe Shindari Dalinaba Ribrari Klaba Hobara Balinaba Shandara Balinaba Shindoro Dolonabo Shindore Delinibi Shikere delenebe rebelena babare ridalana babaro rolana bashindari rikalana babare rebelene daba shakoro dolona bo shindoro dolona ba shikere delenebe rebere delina baralana bashindoro rolani baba ribaba barindare ridalona khalano rikelina babare ridalana handare shikoro dolona ba Shikere delina biri bebe dolona babo rabari dalana hari kalana khabare rekelena babari di dalina babaro rolini kalina ba shikaro dolona ba shikoro dolona ba shindare deleni bi rekelene kilina ralana handare rikalina borele shindoro dolona bo shiboro dolona bari dalene kilina
rablali blali blalere kelena baboro rolani kalina hiri dalena khalina shikaro dona bariri dalene bibere darina rindariri kalana babare rabrari klababare dano dari dala shikorana handari dalene vishindoro dolona khaba baba hori bebe here belina hakbari dalina bana handare delina hakbro kora bala la 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 bashindari dalina hakbara kira balana hakbare kere belena khalino shokoro dolo shokori dali heberi dali kilina hakbara kira balo shakrabelina handare ribene hindari dalina ba kira balana khalene be shokoro dolo na handaro rabrari klabala la bashitere rebina handari dalina hakbara kira balana khalene be shekere delena khalina hakbara Rambra rikla balina khale shikoro dolona handari rabra rikla balala bashindoro rabani kilina hakbare kira balana khale nebe shandoro dolona khaba heri balana hakbare kire belina khalina bo shandro rodolona kiri shikare delena khalina ba shikoro dolona handoro rabra rikla balala bashindari ere delena khalina hakbara kira balona hakbare Kambra ribra rikla balala bashendoro rabana handari dalina hakbare ribe neke lena hakbara shakro dolona handari shikarindra ri dalina hakbare shikere re hira baba 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 hori dalaba ribe re dalina handari daline be shakro dolona hakbara lana handari Oh, ho, 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 ho. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Welcome, 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 Holy Spirit. We praise you and we worship you. We adore you. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Jesus, I thank you. Thank you for this school of Holy Spirit. Thank you for the 21st day of the school of Holy Spirit. Jesus, I declare your lordship upon this batch. Jesus Christ is the Lord of the Lord and King of this batch. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we start our teaching today in your mighty and precious name. Thank you, Holy Spirit. You are here with us. You are ready to teach us. And we all as a student ready to listen you. Lord, thank you so much for your grace. Thank you so much for your presence. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you. In Jesus' mighty name, we start this session. Amen and amen and amen. So bless you all. Today, I'm giving the second diverse kind of tongues. Yesterday, I have given overcoming language. Now today, I'm giving exciting language. When you pray in the Spirit, when you pray in the tongues, when you join Holy Spirit, and with the help of Holy Spirit, you start praying, your spirit will pray, your mind will not pray. Yes, that's the praying in the Spirit. When you start praying, there is one kind of language known as exciting language. It brings God's presence. When you pray in the Spirit and in an excited language, this excited language brings God's presence. जब आप आत्मा में होकर आत्मा की सहायता से आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो इस भाषा को एक्साइटिंग लैंग्वेज भी कहते हैं. जब आप इस आत्मा में प्रार्थना में बढ़ते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेरने लगती है. आत्मा में प्रार्थना के जरिए आप परमेश्वर की उपस्थिति को ला सकते हैं. आपके बीच में उसकी उपस्थिति आती है, पवित्र आत्मा मंडलाने लगता है, मूव करने लगता है. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. So you can write
एक्साइटिंग लैंग्वेज में क्या करेगा मीन्स इट ब्रिंग्स द गॉड प्रेजेंस, ये परमेश्वर की उपस्थिति को लाती है। आमेन। सो आज की टीचिंग का जो शीर्षक है, आप अपना उसमें टाइटल डाल लें। द टाइटल ऑफ टुडेज टीचिंग इज अंडरस्टैंडिंग द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आवाज को समझना, सुनना, समझना। मैं विश्वास करता हूं कि हर विश्वासी, हर छोटे बड़े सेवक के दिल की ये तमन्ना रहती है कि वो प्रभु की आवाज को सुने, एटलीस्ट अपने लाइफ में एक बार तो जरूर सुने। सो ये बहुत ही एक्साइटेड टाइटल है और आज की टीचिंग बड़ी एक्साइटेड है। अगर आपके दिल में ये चाह है, इफ यू डिजायर टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडिबल वॉइस। Yes, my dear, you can hear the audible voice of your God, the Father. पवित्र आत्मा में होकर वो आपसे बोलेगा। आपको मालूम, to hear the voice of God, to hear from your daddy is your birthright. चूंकि आप परमेश्वर की निज धन है, निज संतान है, उसकी संतान होने का हक पाया है। यू आर इन टू हिज फैमिली, यू आर द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ गॉड, यू आर द हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इफिशियंस 2:19। देन यू हैव द बर्थ राइट, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप अपने पापा की आवाज को सुने। पप्पा आपसे बात करना चाहते हैं, पप्पा भी आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं और आपके अंदर भी ये होना है। ये कठिन बात नहीं है ना? जिनको इसका प्रकाशन नहीं है उनके लिए कठिन बात है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा से जुड़ी हुई है, कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो आप प्रभु की वाणी सुन सकते हैं, उसकी आवाज को सुन सकते हैं। आदम को जब बनाया गया तो वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। ये और बात है कि जब उसने आज्ञा तोड़ी, इवन तब भी प्रभु की उपस्थिति जब आई तो उसको पता चल गया कि परमेश्वर आ चुका है। बाइबल में ऐसा वर्णन है उत्पत्ति की पुस्तक में, अगर आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें, आई थिंक आपको मिल जाएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय के 8 और 9 पद में, इफ यू रीड जेनेसिस 3 वर्स 8 and 9, फर्स्ट प्रेजेंस केम, देन द वॉइस केम। सो परमेश्वर की उपस्थिति उसकी वाणी को लाती है। प्रभु का धन्यवाद हो कि अब प्रभु बाहर नहीं है, प्रभु मेरे अंदर है। अगर आपकी आत्मा उससे कनेक्टेड है, यू कैन हियर द वॉइस ऑफ द स्पिरिट। जीसस सेड, इफ यू हैव ईयर देन हियर व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज सेइंग। Especially in this last days, God has spoken us through His Son. It is written in Hebrew chapter 1 verse 2. इब्रानी 1:2 कहता है कि अंत के दिनों में पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। जब बेटा इस धरती पर चल रहा था तो बेटे के माध्यम से उसने बातें की। जब बेटा इस दुनिया में नहीं था तो यहोवा खुद आते थे, खुद बात करते थे। आप देखें निर्गमन की पुस्तक में उसके 7 अध्याय, उसके पहले पद को, 8वें अध्याय पहले पद को, 9वें अध्याय पहले पद को, 10 अध्याय 1 पद को, 11 अध्याय 1 पद को, 12 अध्याय 1 पद को, 13 अध्याय 1 पद को, 14 अध्याय 1 पद को आप पढ़ें। यहोवा ने मूसा से बातें की, यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा ने नहीं कहा,
यहोवा ने कहा। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पुराने नियम में, ओल्ड टेस्ट में, फादर स्पोक, गॉस्पल टाइम जीसस स्पोक, एंड नाउ वी आर इन द डेज ऑफ होली स्पिरिट. Actually, we are in the last day of the last days. In the time of Holy Spirit, this is the time, this is the period of Holy Spirit. And Holy Spirit speaks. Even Jesus said to all the churches who have hear what the Lord, Holy Spirit is saying. Rabalina Akhbare Dirinaba. Since Old Testament people are hearing the voice. So how to recognize the voice? How in OT people go in different place, wilderness, mountains, and they sit, making practice to sit. Even nowadays in Gentiles, people are leaving house, going to the mountain, spending time all alone to listen, but they are not listening. Why? Because they don't know Jesus. First know Jesus, then you will get the connection of the Holy Spirit. So मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि आज के युग में भी आप प्रभु जी की वाणी सुन सकते हैं. अब वो आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके ऊपर है. As a person, Holy Spirit, in spirit form, all the time, आपको तैयार रहना है. Anyone who have desire to fulfill the plan and purpose of God must be filled with the Holy Spirit on daily basis and must have experience, must have practice, must have desire to hear from the Lord Holy Spirit. चूंकि लोग जानते नहीं हैं इसलिए सुन नहीं पाते, चूंकि लोगों को सिखाया नहीं गया, क्योंकि लोग डाउट में हैं इसलिए. लेकिन आप जब इसको खोजेंगे, ढूंढेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रभु की वाणी को सुन सकेंगे, है ना. इस दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं, है ना. साउंड पोल्यूशन है, ऑलरेडी सो मेनी वॉइसेस, सो पीपल कांट रिकॉग्नाइज इज इट गॉड इज स्पीकिंग और डेवल इज स्पीकिंग. समटाइम योर इमोशंस आर सेइंग, समटाइम योर फीलिंग आर सेइंग, समटाइम your mind is saying, but you have to recognize. How to recognize the voice? So today in this study we learn all these things. आज के इस अध्ययन में हम ये सारी चीजों को सुनेंगे, जानेंगे. बाइबल हमें इस प्रकार से समझाती है. पवित्र आत्मा अनुग्रह करें, वो समझाएं हम लोगों को, सिखाएं हम लोगों को. हम तैयार रहें सीखने के लिए. तो प्रभु तैयार है हमें इस बात को बताने के लिए कि कैसे हम प्रभु की आवाज को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट. व्हेन यू से समथिंग, गॉड विल आल्सो से समथिंग. इट्स नॉट वन वे. अंडरस्टैंड, ये एक तरफा बात नहीं है. हम लोग ने क्या करते हैं, हम एक तरफा बात करके उठ के चले आते हैं. नहीं, आपको ठहरना है. जब आपने हेलो किया है तो फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा, यस हेलो, व्हाट यू वांट टू से. आपको याद है बर्तिमाई ने पुकारा था जब यीशु को, तो यीशु ने उससे कहा, बर्तिमाई तूने मुझे पुकारा, बता किस लिए पुकारा, तू मुझसे क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं. सो मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, यू आर प्रेइंग इन स्पिरिट, प्रेइंग इन टंग्स मीन्स यू आर स्पीकिंग टू गॉड, यू आर टॉकिंग विद गॉड.
You are going to Father Almighty and talking with the Father Almighty. So when you talk, you have to wait over there. Your role is when you stop your speaking, then stay there to listen. तो परमेश्वर के पास जब आप जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मा में बातचीत करते हैं, तो अपनी बातचीत करके खत्म ना करें, वरन इसकी बात जो है कि अब वहां से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. चूंकि प्रभु आत्मा है, मनुष्य भी आत्मा है. गॉड इज स्पिरिट एंड मैन इज ऑल्सो स्पिरिट. व्हेन गॉड स्पीक्स वी हियर, एंड व्हेन वी स्पीक्स गॉड हियर. तो सुनने के ऊपर सारी बात है. बस यही जीवन का दारोमदार सुनने पर है. जो व्यक्ति, ध्यान से सुने मैं क्या बोलने जा रहा हूं, प्रोफेटिक बात कहने जा रहा हूं. जो व्यक्ति प्रभु की आवाज को सुन लेता है, 101% वो प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. दूसरे शब्दों में, योर मिनिस्ट्री विल स्टार्ट मोमेंट यू हियर द वॉइस ऑफ गॉड. सो पहले मैं आपको समझाऊं इस सुनने की बात में, फिर थोड़ा और गहराई में हम लोग चलेंगे. हम सब जानते हैं रोमन 10:17, विश्वास सुनने से आता है. When God speaks, faith comes in the hearer. तो विश्वास जो होता है परमेश्वर के वचन में होता है. परमेश्वर का वचन परमेश्वर है. सो डिफरेंट काइंड ऑफ फेथ डेवलप होते हैं. सबसे आसान तरीका जो लिखित वचन है, अगर मैं उसको सुनता हूं तो उस वचन में विश्वास होता है और वो विश्वास मेरे अंदर आता है. अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, दैट इज हियरिंग बाय वर्ड ऑफ गॉड. अब फिजिकली आप उसके स्पोकन वर्ड को सुनते हैं. तो दो प्रकार से आप वचन को सुन सकते हैं. एक लिखित वचन को जब आप पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो सुनने के बाद जब वो वचन आपके अंदर जाता है तो उसके अंदर जो विश्वास है वो भी आपके अंदर चला जाता है. तो WORD वर्ड, इस वर्ड को समझें जरा. ग्रीक भाषा में वर्ड को दो मीनिंग है. पहला मीनिंग लोगो और दूसरा मीनिंग होता है रेमा. लोगो जो होता है वो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है. मीन्स बाइबल इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड. दिस इज लोगो. एंड व्हेन यू रिसीव द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड रेमा. सो बाइबल सबके पास है, लेकिन रेमा वर्ड सबके पास नहीं है. तो मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं, ये बात आज स्टडी में ला रहा हूं कि उस रेमा को कैसे प्राप्त करें, कैसे उस आवाज को सुने. लिसन वेरी केयरफुली. व्हेन यू मेडिटेट ऑन लोगो, मीन्स रिटन वर्ड, देन ओनली यू विल गेट रेमा वर्ड. सो वन वर्ड ऑफ रेमा विल चेंज एनीबॉडीज सिचुएशन, change the atmosphere of any event, change the atmosphere of any meeting. So Rhema is very, very powerful because it is spoken by God. Whether it is spoken by Jesus or Father or Son or the Holy Spirit. When you receive it, you get the faith. The faith, I believe, faith with some sparking, it converted into the gift. आपको मालूम फेथ फल में भी है, फेथ गिफ्ट में भी है. जब आप रिटन वर्ड को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको अपने अंदर लेते हो, तो रिटन वर्ड के अंदर जो विश्वास है वो आप में आता है और आप सब ऐसा करते हैं. लेकिन जब स्पोकन वर्ड आपको मिलता है, उसकी वाणी सुनकर आप जब प्राप्त करते हैं, जब पवित्र आत्मा आपसे बात कर देता है, कोई वचन देता है, तो वही फेथ जो है गिफ्ट में कन्वर्ट होता है, एक्शन में आ जाता है. और अच्छे से इसको समझें.
Romans 10:17 says, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So what I am saying, when God speaks, Rhema word will come. When He speaks in Rhema. तो स्पोकन वर्ड जब आता है तो उसमें भी विश्वास होता है, बट ये विश्वास लिखे हुए वचन को सुनने से कहीं पावरफुल होता है। जब आप उस सुने हुए वचन को प्राप्त करते हैं, सुनते हैं, तब आपके अंदर जो विश्वास आता है वो पावरफुल फेथ होता है, यानी गिफ्टेड होता है, एक्शन वाला होता है, उसमें एक स्पार्किंग सी होती है, इमीडिएट कुछ होता है आपके अंदर और आप गिफ्ट में ऑपरेट कर जाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी फेथ, एंड दिस काइंड ऑफ फेथ इज नोन एज अंडर द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। बट व्हेन यू रिसीव Rhema word, when it comes through the Rhema, sparking comes in your faith. It converted into the gift, it converted into the action. So when God speaks, there is a spark. You know, some people are burning for God. कई लोग परमेश्वर के लिए तैयार हैं, उनकी आत्मा बबलिंग कर रही है, वो आग से भरे हुए हैं। Why? Because they have spark inside the fire. वो आग से भरे हुए हैं। परमेश्वर आग है, बाइबल कहती है he is a consuming fire. So spark comes when you understand the voice of God, when you listen God, when you receive Rhema word, then that type of fire will come. Situation whatever be, हालात कैसे भी हो, स्थितियां कैसी हो, परिस्थितियां कैसी हो, कमी हो, घटी हो, विरोध हो, because of that fire, because of the Rhema word, because you have heard the voice of God, you have the supernatural faith. It is working in a supernatural way. So when a spark comes in you, you have to keep burning that flame. आपको याद आता है इब्रानियों की पुस्तक के अंदर प्रभु जी ने क्या बोला है? पहले ही अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने सेवकों को धधकती हुई आग बनाया है। प्रकाशित इब्रानियों 1:7 में लिखा है, इब्रू चैप्टर 1:7, कि स्वर्गदूत के विषय में वो कहता है कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। बोलिए प्यार से हालेलुया, मुस्कुरा के बोलिए हालेलुया। For an overseer as God's steward, और राबालीना हखबरा, परमेश्वर का वचन उनके लिए है। For the angels, he says, he makes his angels winds and his ministers a flame of fire. When you receive that word, आज संसार ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके पास परमेश्वर का वचन है, बोला हुआ वचन। रिटन वर्ड सबके पास है लोगों सबके पास है। लोगों की अलमारियों की शोभा बढ़ा रहा है, कईयों के तकिए के नीचे की शोभा बढ़ाता है, कईयों के दीवारों पे लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं उस रिटन वर्ड की बात यहां नहीं कर रहा, मैं रेमा वर्ड, स्पोकन वर्ड की बात कर रहा हूं। आपको मालूम, बुक का यिर्मयाह 37:15-7 अगर आप पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 37 चैप्टर और 15 से 17 पद को आप पढ़ना, वहां पर आपको एक जिक्र मिलेगा किंग सिदकिय्याह का। यस, किंग सिदकिय्याह वहां मिलेंगे। और किंग सिदकिय्याह के राज में
नबी जो भविष्यवक्ता प्रॉफिट था यिर्मयाह, उसका विरोध होता है। और जब उसका विरोध होता है तो लोग उसको बेइज्जती भी करते हैं, मारते हैं, उसकी पिटाई करते हैं। और बाइबल में लिखा है कि उसको जेल में डाल दिया जाता है। यिर्मयाह को सोचिए, अगर आज के जमाने में प्रभु के किसी सेवक की पिटाई हो और उसे जेल में बंद कर दिया जाए, तो सब लोग कानून की किताबें, एडवोकेट, और प्रार्थना करो और ये करो और वो करो और एफआईआर लॉन्च करो, सारी बातें दुनियावी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम जब इसकी पिटाई हुई, जेल में डाला गया, तो यिर्मयाह प्रभु से बातें करने लगा। और जब बातें उसने की, कुछ हुआ। राजा जो सिदकिय्याह वो आता है, वो मैसेज भेजता है जेल में कि यिर्मयाह को जेल से बाहर निकाल के लाओ। और यिर्मयाह को जब जेल से बाहर लाया जाता है तो जानते हैं उससे वो क्या सवाल करता है? किंग कॉल्ड Jeremiah and he said, do you have any word from God? सुन रहे हैं आप? ये राजा इससे पूछ रहा है। सिदकिय्याह राजा ने उसे बुलाया और उससे सवाल किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन तेरे पास आया है? The king questioned him secretly in his house and said, is there any word from the Lord? Wow. Today, world want to know the word of God. God want to use you as his mouthpiece. King need, leaders need, administrators need to know the word of God. What I am trying to say, the world, W-O-R-L-D, world, want to hear word, W-O-R-D, from God. Oh, from God. आज संसार देखना चाहता है, सुनना चाहता है। क्या कोई है? Is there any man of God who have received the word? People are not listening the voice of Holy Spirit. They are not understanding the voice of the Holy Spirit. That's why all differentiation. World is expecting the word. Be the mouthpiece of God. My duty, my ministry is first to hear God. So, you see in Isaiah chapter 6, Isaiah as a prophet, first he ministered to God. When he ministered to God, then God ministered to him. He got the upper vision. When he got the upper vision, he got the inward vision. If you first minister to God, then God will minister to you. Then you go outward and minister to the world. This is the order, and people are not doing. I know many people, many servants of God. They are not sitting at the feet of Jesus. They are not receiving the word, and they start standing to the pulpit and started teaching, giving the word of God. People have their 1 year schedule already printed. Year and year, every Sunday the same message. What is written 10 years before, the same message after 10 years. No, this is not the way. God promised, I will give you the fresh manna. He give you the revelation day to day. रोज के रोज वो मन्ना खिलाता है, ताजा अभिषेक, ताजा वचन,
प्रतिदिन का वचन, प्रतिदिन उसकी करुणा नई होती है, तो रोज के रोज उस वचन को रिसीव करना। जब आप इस तरीके से प्राप्त करते हैं और आप विश्वासियों को, कलीसिया को देते हैं, तब कलीसिया की उन्नति होती है। 1 साल 10 साल पुरानी किताब पहले से प्रिंट करके रख लिए, उसमें वचन लिखे हुए हैं, जो भी पादरी आएगा उसी किताब से बोलेगा और हर सालों साल वो चलता रहेगा। I think this is not the way of God the Almighty. हमारा और आपका पप्पा फ्रेश भोजन देना चाहता है, ताजा मन्ना, और रोज सेवक की ड्यूटी है वो प्रभु जी के चरणों में बैठे। We must have the word for the world. World is waiting. So make practice, make experience. Let it be your lifestyle to receive from God on daily basis, to listen Holy Spirit on daily basis. And starting it may be difficult, but when you start day to day, He will speak to you. As I already told you, in the world already so many voices. You may be confused in starting, but when you make practice day to day, it will be clear to you. In the world, संसार के अंदर बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी आवाजें हैं. If you listen the world and if you see in the world, you will hear devil, you will hear TV, through social media, through YouTube. If you giving your time to the world, to the technique, in the things, you will get fear. आपके अंदर भ्रम और डर की उपस्थिति आ जाएगी. When the fear come, it will steal your peace, joy and comfort. So don't spend time to listen the world. Yes, I suggest you, if you are giving your time to TV, stop it. You will get nothing. Only you will be fear. Your peace, your joy, comfort, all disturbed. Listen to the voice of Holy Spirit. Spend time with Holy Spirit. Holy Spirit speaks. He speaks continually. He speaks clearly. We don't hear from Him. Why? I will explain you later on. But first I want to explain. You believe that the Holy Spirit speaks. In Old Testament, Father Yahweh is so far. He was in the third heaven. So usually man of God will go to the mountain. They spend time all alone. They wait. Not surety that they will hear. But they tried. In Indian culture, also the same thing. In New Testament, the Spirit, the Lord is inside. So close. He is inside, He is so close, even then we can't hear His voice. It means still we are far. No closeness, no communion. Why? Because no fellowship. मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पुराने नियम के लोग घर से दूर हो जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, जंगलों में जाते थे. कोई श्योरिटी नहीं है कि वो प्रभु यहोवा की वाणी को सुनेंगे. लेकिन नए नियम में परमेश्वर आत्मा के रूप में मेरे साथ, मेरे अंदर है. इतने करीब होने के बाद भी मैं उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं. क्यों? क्योंकि हम लोग इस एक्सपीरियंस में नहीं गए, इस प्रैक्टिस को नहीं किया, क्योंकि हमारी और आत्मा की क्लोजनेस नहीं हुई,
क्योंकि हमारा और आत्मा के साथ कम्युनियन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रही क्लोजनेस, क्यों नहीं हो रही कम्युनियन? क्योंकि हमारी उसके साथ फेलोशिप नहीं हो रही। हम लोगों के साथ बाहरी रीति से फेलोशिप कर रहे हैं, ऊपर से हम फेलोशिप कर रहे हैं, अंदर से फेलोशिप नहीं हो रही। उस प्यार के साथ फेलोशिप नहीं हो रही जो मसीह ने हमसे किया। यीशु को देखें, जब यीशु मसीह मनुष्य की देह में थे, परमेश्वर की परिपूर्णता उनमें थी, उन्होंने भी आत्मा से जन्म लिया, उन पर भी आत्मा उतरा। सी हाउ क्लोज ही इज, हाउ इज हिज फेलोशिप। उसके प्रार्थना करने का तरीका को देखिए। बाइबल कहती है लूका 10 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने 70-72 चेले लिए और 2-2 करके सबको भेजा, और सब गए और सबने जाकर सेवकाई की। यीशु ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तुम्हें मैन ऑफ पीस मिलेगा, उसके घर में जाना, वहीं टिकना, इधर उधर मत जाना, जो कुछ वो दें वो खा लेना, वहां के बीमारों को चंगा करना, अपने साथ ये लेके जाना, ये लेके नहीं जाना, सारी इंस्ट्रक्शन दी। और वो लोग जाते हैं, सेवा करते हैं उसी प्रकार, और वापिस आकर यीशु मसीह को रिपोर्ट सुनाते हैं अपनी। और यीशु मसीह जब उनकी रिपोर्ट को सुनते हैं तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह आत्मा में आनंदित हो जाते हैं। बोली हल्लेलुया। ये इसका वर्णन लूका 10 अध्याय में दिया हुआ है कि जब वो 70 वापिस आते हैं, लूका 10:17 से आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और उन्होंने आके अपनी रिपोर्ट सुनाई यीशु मसीह को, और उन्होंने यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखता हूं। तब यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें यह अथॉरिटी दे दी है, तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी, तुम शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार रखोगे। और तब यीशु मसीह ने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। बाइबल कहती है 20वें पद में यीशु मसीह आत्मा में आनंदित हो गए, और यीशु ने कहा कि आत्मा तुम्हारे वश में है, इसलिए आनंदित मत हो, वरन इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। बोली हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 21वां पद में लिखा है, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और अपने बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा है। What I am saying, कि when the disciple they came and they gave the report कि what they have done in your mighty name, I want to just showing that they are doing the ministry. It is a kind of ministry. So they have just completed his ministry. They came back and they given report to the Jesus, and Jesus gave thanks to the Almighty God. When the chapter 10 is closed and the Luke chapter 11 start, and you see what happened over there. जब 10वां अध्याय समाप्त हुआ, लूका 11 शुरू हुआ, तो वहां पर चित्र कुछ इस प्रकार है कि एक यीशु मसीह एक जगह प्रार्थना कर रहा था, और बाइबल कहती है जब वो प्रार्थना कर चुका तो चेले उसके पास आए और उससे बोले, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। वाह! 10वें अध्याय में वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, 11वें अध्याय में कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना सिखा। वो यीशु से ये नहीं कहते कि हमें चमत्कार करना सिखा, कैसे तू 2 मछली 5 रोटी से 5000 की भीड़ को खिलाता है ये सिखा, कैसे मुर्दे जिलाता है ये सिखा। उन्होंने ये सब चीजें नहीं कही। इन चीजों ने इतना प्रभाव नहीं डाला एज कंपेयर टू द प्रेयर लाइफ ऑफ जीसस। See the prayer life of Jesus, how Jesus is talking to his father. इस बात ने उन्हें अट्रैक्ट किया। So चेले अट्रैक्ट हुए, the disciples were attracted by the prayer life of Jesus, how Jesus is talking to the Father. वो बात करना
उन्हें अट्रैक्ट कर गया और उन्होंने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह जब इस देह में थे, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, उनका पिता से बात करने का तरीका क्या था। वो पिता से अपनी बात कहते थे और पिता से उसकी बात सुनते थे। तब वो लोगों से कहते हैं मैं वो बोलता हूं जो पिता से बोलते हुए सुनता हूं। What I am speaking, I heard from the Father, then I speak. जो पिता कहता है मैं वो करता हूं, जो पिता को करते हुए देखता हूं वो करता हूं, जो पिता से सुनता हूं वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। My word is not my word, it's the word of the Father. Yes, on daily basis he is receiving 3.5 years when he did the ministry. Every day he spoke, he gave the teaching with the deep revelation. Still after 2020 years the same teaching is we are using. It is so practical teaching. Still you can apply upon your situation. आप अपनी परिस्थितियों पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल कहती है जब लूका 3 अध्याय के 21-22 पद में यीशु मसीह यरदन नदी में डुबकी लगाए तो बाइबल कहती है उन्होंने प्रार्थना की। In chapter Luke 3:21 and 22, Jesus, when took the baptism, Jesus prayed. In verse 21 says, Jesus prayed, means Jesus speak. And verse 22 says, Father prayed, means Father spoke. So it is a vice versa. It is not one way that we will speak only. No. When you speak, God will hear. When God speaks, you will hear. That's the thing. That's the way we have to talk. We have to listen. So make practice to listen the voice of God. आप देखिए, मैं 1-2 आयतों से आपको दिखाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा बात करता है। बाइबल कहती है प्रेरितों की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में, इफ यू रीड बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8 वर्स 26 to 29, होली स्पिरिट इज स्पीकिंग गॉड। होली स्पिरिट स्पीक्स। आमेन। Don't neglect the Holy Spirit. Don't neglect the voice of Holy Spirit. He is not only third person of Trinity, he is the member of the Trinity. It is the time of Holy Spirit. We are in the days of Holy Spirit. So lend yourself to Him. Yield yourself to Him. अपने शरीर पर आत्मा को, पवित्र आत्मा को समर्पित करें। Let him take over. You must be controlled by the Holy Spirit. Our part is only to obedience, willingly obedience, immediately obedience. Don't have second thought. God's word plus my obedience plus your obedience is equal to visitation, is equal to miracle. आप सुन रहे हैं मेरी बात को। परमेश्वर का वचन और आपकी आज्ञाकारिता जब दोनों मिलते हैं तो विस्फोट होता है, चमत्कार होता है, परमेश्वर का चलन होता है, विजिटेशन आता है। गॉड्स कम ऑन द स्क्रीन. You will hear. I said you will hear. People will say, kingdom will grow. So प्रेरित 8 के अध्याय के अंदर फिलिप जो है वो सेवकाई कर रहा है। फिलिप इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। फिलिपुस जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। बाइबल बताती है प्रेरितों की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर उसके अनुसार पवित्र आत्मा से भरा हुआ था,
विश्वास से भरा हुआ था, बुद्धि से भरा हुआ था। Philip was full of Holy Spirit, full of faith, full of wisdom of God. And in chapter 8 he is doing the ministry. And 26 and 29 में क्या होता है सुने, मैं वहां से पढ़कर आपको सुनाता हूं, मजा आएगा, आप कुछ सीखेंगे। प्रेरितों की पुस्तक, जस्ट लेट मी ओपन द बाइबल। यस, 26. Now an angel of the Lord said to Philip, rise and go toward the south to the road that goes down from the Jerusalem to Gaza. 26वें पद में स्वर्गदूत फिलिपुस से बात कर रहा है। स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पे जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। और देखिए वो उठकर चल दिया, उसने ओबीडियंस ही दिखाई। हम लोग जैसे नहीं आलस कर गए। और देखो, कूश देश को एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कांदाके के मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम में आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट रहा था, है ना। 29वें वचन में लिखा है, the verse 29 says, and the Spirit said to Philip, go over and join this chariot. तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। सुन रहे हैं किसने कहा? 29th वर्स में कौन बोल रहा है? होली स्पिरिट बोल रहा है। 26th वर्स में एंजल बोल रहा था। लिसन केयरफुली, आई एम गिविंग यू द प्रोफेटिक वर्ड। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। ज्वाइन द चैरियट, लिसन द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट। अगर फिलिपुस ने उस वक्त आत्मा की आवाज को न पहचाना होता, न सुना होता, तो एक आत्मा जो प्रभु में आने से वंचित हो जाती। इफ यू वॉन्ट टू विन द सोल्स, यू मस्ट हियर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। यू मस्ट ज्वाइन द चैरियट। बाइबल कहती है, आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। हेलो, वो कैसे हो लिया होगा सोचिए। रात को मैं मनन कर रहा था एक बात पर, तो मैं कह रहा था, प्रभु जी लॉकडाउन है, कैसे इधर से उधर जाए। तो मेरे अंदर से होली स्पिरिट बोला, याद कर फिलिपुस कैसे गया, आत्माओं से उड़ा के ले गया। पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध हो जा। और यीशु मसीह कहते हैं नए नियम में इब्रानियों 12 के अनुसार, रन योर रेस, लुक अनटू जीसस हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ। लेकिन पवित्र आत्मा के युग में होली स्पिरिट क्या कह रहा है? वो कह रहा है, मैं उड़ा के ले जाऊंगा। चलना अलग, दौड़ना अलग, उड़ा के ले गया उसे। परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है। पवित्र आत्मा बोलता है, उसकी आवाज को सुने। प्रेरित 10 के अंदर 17 से 19 वहां पर क्या वर्णन है उसको सुने कि जब पतरस ने दर्शन को देख लिया, वो चादर नीचे उतरी, तो उसके अंदर दुविधा उत्पन्न हुई। वो डबल माइंडेड हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था उसे कि ये दर्शन जो मैंने देखा वो क्या हो सकता है। तो अभी ये सोच ही रहा था कि बाइबल कहती है कि वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था, सामोन के घर का पता लगाकर द्वार पर आकर खड़े हो गए और पुकार के पूछने लगे, क्या सामोन जो पतरस कहलाता यहीं रहता है, यहीं अतिथि है? 19 पद में लिखा है, पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा। किसने कहा? आत्मा ने कहा। पीटर was inwardly perplexed as to what the vision that he had seen might mean. Behold, the men who were sent by the Cornelius
having made inquiry for Simon house, stood at the gate and called out to us whether Simon, who was called Peter, was lodging here. And 19th verse says, and while Peter was pondering the vision, the Spirit said to him, behold, 3 men are looking for you. Rise and go down and accompany them without hesitation, for I have sent them. आप देखिए, पवित्र आत्मा ने क्लियर कट उसे कह दिया कि जो आए इनके साथ जा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. There is a plan and purpose. So what I told earlier, if you have the plan and purpose to do the ministry, if you have desire to fulfill the plan and purpose of God in your life, you must hear the voice of Holy Spirit. और पतरस ने उस आवाज को पहचान लिया और वो वहां चला जाता है. जब वो जाता है, बाइबल कहती है 44 वर्स में, and now here Peter is giving the gospel of Jesus Christ. पतरस आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनाने लगा, यीशु को सुनाने लगा. बाइबल कहती है जब वचन सुना ही रहा था तो सब सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया. और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वो सब ने देखा, टेस्टिफाई किया कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा आ गया है, और वो भी भांति भांति की भाषा बोलने लगे. और पतरस कह उठते हैं, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया? फिर उसने आज्ञा दी कि इन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए. तब उन्होंने उनसे विनती की कि वो कुछ दिन और वहां पर टिकें. मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 44 वर्स में व्हेन पीटर स्पीक्स इन अ 46 वर्स, he works, Holy Spirit actually works on Peter, and Holy Spirit works on the listener of the word of God. Where is the word of God, there is the Holy Spirit. People were not a Christian, they are Gentile, and Holy Spirit came on the Gentile, and Gentile also speaking in tongues, praying in spirit. On 47 verse, Peter is continuing his preaching and leading them into the baptism. So मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि Holy Spirit speaks, we have to make practice to hear his voice. Don't all the time pray in the flesh. Don't pray all the time in the mind. Fleshly prayer will not answer. Your own feeling, emotions, mind will pray is not answered. Many nominal Christians are doing the same thing. Must be hungry for the Holy Spirit. Must wait. Have practice to listen the voice of the Holy Spirit. In the book of Acts chapter 13, 13वें अध्याय को अगर आप पढ़ें, 1 और 2 और 3 पद, वहां पर लीडर्स लोग तैयार हैं. अंताकिया की कलीसिया है, वहां पर प्रॉफिट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, लीडर्स भी हैं, एल्डर्स भी हैं. सब लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? उपवास सहित प्रभु की उपासना. दे आर वर्शिपिंग द लॉर्ड विद फास्टिंग. फास्टिंग प्रेयर आपने सुनी होगी, लेकिन यहां पर फास्टिंग वर्शिप हो रही है. बहुत कम होता है कि लोग आराधना उपवास के साथ करें, लेकिन ये लोग कर रहे थे. क्या हुआ जब ये आराधना कर रहे थे? बाइबल कहती है इन 2nd वर्स, while they were worshiping the Lord and in fasting, the Holy Spirit said, set apart for the Barnabas, set apart for me Barnabas and Saul. Saul is the Paul, for the work to which I have called them. जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा बरनबास और साउल को अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. तो मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है. You have to discern the voice of Holy Spirit. If you listen the voice of Holy Spirit, I tell you, nobody can cheat you, nobody can misguide you.
कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, आपको धोखा नहीं दे सकता अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानने लग गए हैं तो। वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट. वी मस्ट हैव टू ट्यून आवरसेल्फ विद द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट. रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट. इट इज पॉसिबल व्हेन यू कनेक्टेड विद हिम. ये सारी बातें संभव हैं जब आप पवित्र आत्मा के साथ मिल जाते हैं. बोलिए हालेलुया. उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं. जब आपका कनेक्शन ये बनता है, जब आप उसके साथ संगति में बढ़ने लगते हैं, फेलोशिप में होते हैं, यू कैन हियर हिज वॉइस. यू कैन डिसर्न इजीली. आप उसकी आवाज को आसानी से पहचान सकते हैं. और ये सब कुछ कैसे संभव होगा? इसकी फाउंडेशन क्या होगी? फाउंडेशन या बेस टू हियर द वॉइस. सबसे पहले आपका अद्वैत सच्चे परमेश्वर के साथ रिलेशन होना है. जब आप नया जन्म पाते हैं, आत्मा की छाप लगती है, प्रभु को ग्रहण करते हैं, साल्वेशन एक्सपीरियंस मिल जाता है, आप आत्मा से भरे जाते हैं. यू कैन कॉल हिम नाउ अब्बा फादर. सो मस्ट हैव द रिलेशन. पहली चीज रिलेशन होना जरूरी है. उस रिलेशन का कोई नाम होना चाहिए. आप फादर कह सकते हैं, आप भाई करके बुला सकते हैं यीशु को, आप दोस्त करके बुला सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन 15. होली स्पिरिट के कई नाम हैं. वो आपका सहायक है, मददगार है, आपके लिए मध्यस्थता करने वाला है, आपके साथ खड़ा है, आपका एडवोकेट है. इट डिपेंड्स अपॉन यू. तो मैं कह रहा हूं पहली चीज रिलेशनशिप का होना है. जब रिलेशन होगा तो कन्फेशन आएगा. आप उसको कन्फेस करेंगे कि यीशु तू मेरा प्रभु है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मित्र है, मेरा बड़ा भाई है, तूने मुझे बपतिस्मा दिया है, तू मेरा भेजने वाला है, तेरा ही नाम परमेश्वर का वचन है, तेरा ही नाम विश्वास योग्य है, तू ही सत्य है, तू ही पुनरुत्थान जीवन है, तू अद्वैत है, तू महिमा का राजा है, महिमा की आशा है. Whatever these are the confessions will come from your mouth, and every confession, every name have the meaning, have the revelation. So first thing you will start with the confession of your relation. Then you start communication in the spirit. आत्मा में प्रार्थना कम्युनिकेशन है. नाउ यू स्टार्ट कम्युनिकेशन. व्हेन यू स्टार्ट कम्युनिकेशन, then it communication leads to the closeness. Relationship bring to you at the confession leads to the communication leads you to the closeness. How closeness comes? By closing the door. Means the place where you sit in his presence and you start communicating, means you are start praying. When you come day by day, daily basis in the closeness, through communication, through talking, through praying in spirit, then you will abide in him and he will abide in you. Your spirit grow. You will commune with him. You will have the experience of oneness in spirit. आप और वो एक हो जाते हैं. जो प्रभु की संगति में आता है वो एक आत्मा हो जाता है. You will speak to him and he will speak to you. You will understand him. Amen. 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 Now I am going to explain very deep thing from
मैथ्यू चैप्टर 6, जहां प्रभु जी ने हमें प्रार्थना करना सिखाया. You know, when the disciple came to Jesus in chapter 11 of Luke, they said, Lord, teach us to pray. In book of Matthew, chapter 6, verse 6 to 8, it is written how to pray. Yes, Bible says in chapter 6, verse 5, when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corner, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. I'm going to explain through these verses. मत्ती 6 अध्याय 5 से मैं पढ़ रहा हूं. जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा. प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी. ऐसा नहीं है. सुन रहे हैं आप? नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकाशन को दिया. पुराने नियम के लोगों को मालूम नहीं था. आजकल जब लॉकडाउन हुआ तो हर व्यक्ति क्या करने लगा? भजन संहिता 91 को कोट करता था. इससे पहले उनको याद नहीं आ रही थी भजन 91 की. लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, महामारी दिखी, तो सबने भजन 91 कोट करना शुरू किया और भजन 91 की आशीषें बोलनी शुरू की. लेकिन वो सारी आशीषें तब हैं जब भजन 91 का पहला पद का प्रकाशन आपके पास है. तो इफ यू डोंट हैव द रेवलेशन ऑफ वर्स 1 of chapter 91 of Psalm, then all the other 15 blessings you won't get it. पुराने नियम को नए नियम के चश्मे से पढ़ना पड़ेगा. जब नया नियम का चश्मा लगाएंगे, अर्थात प्रकाशन की आत्मा के द्वारा पढ़ेंगे, तब बात आपको समझ में आएगी. दाऊद ने यह भजन लिखा और वो प्रार्थना करके कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. ये ऐसा वर्णन वहां पर किया हुआ है, लिखा है इस प्रकार से. इसका मतलब दाऊद को भी नहीं मालूम है पप्पा कहां रहता है. डैडी का एड्रेस उसे मालूम नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. It means, according to Old Testament, अगर आप पुराने नियम में होते तो आपको भी नहीं मालूम कि पप्पा कहां रहता है. Where is your daddy? Where is the residential address of your Almighty God? Because he says God dwells in the secret place. It is a secret place where God is living. Nobody knows the address. Thank God to Jesus
Thank you, Jesus. When Jesus came, He opened the secret place. He gave the address of the secret place. Where is the Most High God is living? Today He is living inside of you. So when David says this prayer, he was just praying. He don't know the address. But Jesus has opened the secret place. Do you know when you know the address of secret place, then this will not be secret for you. For us, it is not a secret place now. Moment you are in the secret place, you will meet your daddy, your father. Why? Because Father is in the secret place. And Jesus has given this address to us. He opened the address of the secret place. It is not our spiritual climate. It is not our holiness. It is not our spiritual temperature. When secret is open, it's not the secret for them. Moment you know the secret. Jesus explained this secret place in Matthew 6. I think it's written in the 6th verse. जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है, तो गुप्त एड्रेस क्या है? तुम्हारी कोठरी. Secret place is your room. जैसे ही आप कमरे में जाएंगे, दरवाजे को बंद करेंगे और पलटेंगे, तो आपकी मुलाकात किससे होगी? आपके डैडी से. योर फादर इज देयर. क्योंकि आप वहां किस लिए आए हैं? प्रार्थना करने, बातचीत करने के लिए. तो पिता जब वो सब कुछ गुप्त में दिखेगा तो उसका फल खुले में देगा. आपको मालूम 3 चीजें हैं जो सीक्रेटली हमें करनी है. जब आप दान दें, गिफ्ट किसी को ऑफरिंग दें या गिविंग, योर गिविंग शुड बी इन द सीक्रेट. इतनी सीक्रेट हो कि तुम्हारा एक दाहिना हाथ अगर दे तो बाएं हाथ को भी ना पता चले. इतनी सीक्रेट हो. लेकिन आजकल हम अगर पंखा भी देंगे दान तो पंखे के ऊपर लिखवा देंगे. डंका बजना चाहिए. लेकिन प्रभु कहते हैं शुड बी इन द सीक्रेट. प्रेयर करें तो सीक्रेट में करें. फास्टिंग करें तो सीक्रेट में करें. अगर हम फास्टिंग पे जाएंगे तो पूरे मोहल्ले को पता होना चाहिए. पूरे व्हाट्सएप में मैसेज चला गया कि आज मैं फास्टिंग पे हूं. और मैंने दाढ़ी भी बना ली है, ताकि लोग मेरे चेहरे को देख के भी कहें यार सुबह से बेचारे ने खाया नहीं. प्रभु कहते हैं जब उपवास रखे तो खूब बढ़िया से नहा दो, फ्रेश हो, खुशबू लगा ले, परफ्यूम क्रीम लगा, शेविंग कर ले. जो आप सीक्रेट में करते हैं ना, वो उसका प्रतिफल आपको मिलता है. तो योर डैडी इज इन द सीक्रेट प्लेस. सीक्रेट प्लेस क्या है? इसको हम लोग थोड़ा सा इस पर मनन करें, सीखें कि आपको कोठरी में जाना है और दरवाजा बंद करना है. आप अकेले जैसे ही दरवाजा बंद करके पलटेंगे, आपका पप्पा वहां बैठा हुआ है. आपकी मुलाकात आपके पिता से होगी. और तब वहां पर आप क्या करें? बातचीत करें, अर्थात प्रार्थना करें. जो कुछ वहां आप गुप्त में करेंगे उसका प्रतिफल खुले में मिलेगा. सुन रहे हैं आप? गुप्त में, सीक्रेट में. तो आपका प्रेयर लाइफ सीक्रेट होना चाहिए. सब सो रहे होते थे, यीशु मसीह प्रार्थना करने निकल चुके होते थे. सीक्रेटली वो एकांत में चले जाते थे. मुझे और आपको कोई जगह नियुक्त करनी होगी. जब ये प्रैक्टिस करने की बात करनी है तो हमें कोई पर्टिकुलर प्लेस नियुक्त करें और उस टाइम पे वहां पहुंचें. जब सब लोग सो जाएं, आप प्रार्थना करें. आप देखें क्या होगा. बहुत कुछ मैं इस पर कह सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं
कि जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तब आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। अब ये मत कहना कि ब्रदर पुरी ने बोला है भैया एक कमरा और बना दो मुझे पप्पा क्यों वहां सीक्रेट प्लेस होना जरूरी है। इसका आध्यात्मिक अर्थ समझें। अब आपकी बॉडी उसका ड्वेलिंग प्लेस है, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है। किसी को ऑलमाइटी गॉड का एड्रेस चाहिए तो वो एड्रेस कौन है? एसके पुरी वो मेरे अंदर रहता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप बाहरी रीति से इसका अर्थ मत लें, आत्मिक और आध्यात्मिक रीति से लें। आपकी बॉडी वो घर है जिसमें वो आकर ठहरा है आत्मा के रूप में। सो आपको क्या करना है, कहीं भी आप बैठें आपने दरवाजा बंद करना है। आमतौर पे दरवाजे के दो पलड़े होते हैं, दोनों को आप बंद करते हैं। आजकल फैशन है सिंगल डोर का भी तो दोनों दरवाजे बंद करना मतलब दोनों आंखें बंद कर लें। क्यों आंखें बंद करें? क्योंकि जब आप आंख खोल कर रखते हैं तो आपको दुनियावी चीजें दिखती हैं। तो जब आप शुरुआती दौर में हैं, आप अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, तो आप आंखें बंद करेंगे तो आपको सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। जब आप मैच्योर हो जाएं तो आप आंख खोल के भी प्रार्थना करें, नो प्रॉब्लम। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो आंखें बंद कर लो। उल्टा दाऊद तो ये कहते हैं भजन 119:18 में कि हे यहोवा मेरी आंखें खोल दे वो कहते हैं ओपन माई आईज ओ लॉर्ड। अब वो ओपन माई आईज दैट आई मे behold wondrous things out of your law। तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें मैं देख सकूं, मेरी आंखें खोल दे। तो दाऊद राजा था, अंधा नहीं था। तो वो क्या कहना चाह रहा था, मेरे अंदर की आंखें खुलें ताकि मैं जब अंदर की आंखें खोलूंगा तो मेरे के अंदर का दिखेगा। बाहर की आंख से बाहर का देखोगे तो परमेश्वर बाहर नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहें। वो बाहर आपको मिल जाएगा, वो आपके अंदर है। तो अंदर झांकने के लिए अंदर की आंखें खुलें। सो क्या करें, आप आंख रूपी दरवाजे को बंद करें, और जब आप उसको बंद करेंगे तो नेचुरली आप अपने अंदर देखेंगे, आपके अंदर आपका पिता बैठा हुआ मिल जाएगा पवित्र आत्मा के रूप में। आपके हृदय रूपी सिंहासन पर वो विराजमान है। आप उसके साथ बातचीत करें, आप उसके साथ संगति करें, आपका माइंड इधर उधर कहीं ना जाए। टोटल 100% कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, लूज कनेक्शन नहीं होना है। अगर लूज कनेक्शन है तो प्रेयर से उसे स्ट्रॉन्ग कर लें, प्रेज से स्ट्रॉन्ग कर लें, वर्शिप से स्ट्रॉन्ग कर लें, कन्फेशन के द्वारा स्ट्रॉन्ग कर लें, प्रभु के नामों को अंगीकार करके स्ट्रॉन्ग करें, आत्मा में प्रार्थना के द्वारा उसे स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन होना चाहिए, लूज कनेक्शन नहीं। लूज कनेक्शन होगा तो फिर खतरा बना रहेगा। छोटा सा छेद इतने बड़े जहाज को डुबो देता है। सो शैतान को अवसर ना मिले, इसलिए टाइट होना चाहिए। टाइट रिलेशन, टाइट आपका कनेक्शन होना चाहिए। अगर तार लूज होगी, प्लग लूज लगा होगा तो करंट नहीं आएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कनेक्शन टाइट होना है। तो जब मेरा कनेक्शन टाइट है, आंख रूपी दरवाजा मैंने बंद किया, भीतर मैं झांकने लगा, भीतर वह हवा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा विराजमान है। उन्होंने कहा है यूहन्ना 14:23 में, we will come to you and we will live in you, we will dwell in you। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर है, हम उसके साथ संगति करेंगे, मेरी आत्मा उसके साथ संगति करेगी। और अब मैं आत्मा में प्रार्थना शुरू कर दूंगा। जब मैं प्रार्थना में संगति शुरू करूंगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा
तो परमेश्वर मुझे अनुवाद भी देगा, प्रोफेसी भी कराएगा, विचार भी डालेगा, विजन भी देगा, सब कुछ दिखाएगा, क्या मैसेज देना है, कैसे देना है, वो पूरा मैसेज आपके अंदर तैयार हो जाएगा। और देन यू विल हियर फ्रॉम द लॉर्ड, जो प्रभु से आप सुने वो जाकर आप लोगों को दें, वो वचन सुनाएं, वो शिक्षा दें, तो उसको सुनने से उनको लाभ होगा, उनकी आत्मिक उन्नति होगी। आर यू गेटिंग? लेकिन लोग क्या करते हैं, बाहरी रीति से करते हैं, आराधनालयों में जाकर, सड़कों के बीच में, बाहर दिखाने के लिए। दिखाने के लिए मत करो, सड़कों मोड़ों पे, मतलब जब आप अन्य जातियों के बीच में प्रार्थना कर रहे होते हैं। आराधना मतलब जब जाति भाई के बीच में प्राइवेटली, चर्चेज में भी लोग इस प्रकार से करते हैं। दे आर शोइंग, नो शो ऑफ। ये मैटर इनसाइड वाला मैटर है। एक वचन मेरे हृदय में आ रहा है, अगर आप उसे पढ़ें, दूसरा राजा उसके 33वां वचन मिलेगा, वहां एलिशा का जिक्र है और एक विधवा लेडी का जिक्र है। उसका जवान बेटा मर गया है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं पावर ऑफ द क्लोज डोर। मैंने कहा था कि क्लोजनेस जो है कैसे आती है, When you close the door, Matthew 6:6 के द्वारा, the power of the closed door मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2 King 4th chapter verse 32 से मैं पढ़ देता हूं। When Elisha came into the house, he saw the child lying dead on his bed. Actually पहले उसने अपने सेवक को अपनी छड़ी दी थी, जब विधवा आई थी कि तू जा और इस छड़ी को उसे छुआ देना, और उसने इंस्ट्रक्शन दी थी। लेकिन चेले ने बताया कि भाई कुछ नहीं हुआ, तो एलिशा को खुद आना पड़ा। तो वो सारी कहानी मैं नहीं समझाना चाहता, जस्ट टू द पॉइंट मैं आपको कुछ दिखाऊं। अब एलिशा आता है। एलिशा केम इनटू द हाउस एंड ही सॉ द चाइल्ड lying dead on the bed. So he went in and shut the door behind the two of them and prayed to the Lord. See the power of the closed door. जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ है और वो उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले, नोट कीजिए पॉइंट, अकेले भीतर जाके द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, being a servant of Most High God, being a man of God, I am telling you the truth. Listen carefully, my dear. You have to fix the time, fix the place. Being alone, when you go inside, be alone. कोई भी चीज आपके साथ ना हो, कोई भी और आपके साथ ना हो। कुछ समय आपको अकेले में अपने प्रभु के साथ बिताना जरूरी है। परिवार के साथ प्रार्थना करें, ये अलग बात है। ग्रुप के साथ प्रार्थना करना अलग बात है। कलीसिया के साथ, विश्वासी के झुंड के साथ प्रार्थना करना एक अलग बात है। ये सब बातें तब होंगी जब आप अकेले में प्रार्थना करेंगे। यूनिटी कहां से शुरू होती है? समाज में, मोहल्ले में, देश में, परिवार में। ये सब में यूनिटी बाद में आएगी, पहले यूनिटी आप में आनी चाहिए। आपका स्पिरिट, सोल, बॉडी यूनिटी में है कि नहीं है? स्पिरिट कहीं है, सोल कहीं, बॉडी कहीं। प्रार्थना में आप बैठे हैं, आप कहीं हैं, शरीर कहीं जा रहा है, माइंड कहीं जा रहा है, आत्मा कहीं लगी है। ऐसे नहीं, यूनिटी आना है स्पिरिट, सोल, बॉडी में फर्स्ट। देन इट विल transform into your family members, then it transfer to in your church, then it transfer to into your society, then unity will come, and when unity will come, then
there will be blessing. So in the same way, पहले आपको व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना में आना है। व्यक्तिगत रीति से मुझे यहोवा की वाणी को सुनना है, पवित्र आत्मा को सुनने की प्रैक्टिस डालना है, तब आप स्टेज पर आए, तब आप पुलपिट पर खड़े हो, तब आप कांग्रेगेशन के सामने आए, and you start the same thing. When you have the practice experience, you can hear the voice of the Holy Spirit, and in the public you can demonstrate that thing. ये स्टार्ट होगा अकेले से, तो मुझे और आपको अकेले में समय व्यतीत करना पड़ेगा। और जब मैं अकेले में बातचीत करता हूं, सेम पे द्वार को बंद करें, अर्थात आप की जो बातें खुली हुई हैं, आंखें खुली हैं, कान खुले हुए हैं इधर उधर की आवाज सुनने में, सब बंद। मोबाइल स्विच ऑफ, टीवी स्विच ऑफ, इंस्ट्रक्शन दे दें, डोंट डिस्टर्ब इन दिस टाइम टू मी। सो मैं क्या करता हूं, मैं अपने घर में अकेला हूं, अभी लॉकडाउन में कोई भी हमारे पास नहीं है, मैं और मेरी वाइफ, इसलिए मैं वाइफ को भी नाराज नहीं कर सकता हूं। उसे भी टाइम पर कहती खाना खाना है, टाइम पर डिनर लो। जब सब सो जाते हैं मैं उठ के नीचे आ जाता हूं, सब सो रहे हैं, काम एंड क्वाइट, अड़ोस पड़ोस सब सो रहा है, मैं और मेरा प्रभु हम लोग लगे हुए हैं। एंड प्रभु जी मुझे सामर्थ देते हैं, नया नया प्रकाशन देते हैं, वचन को बोलने की ताकत बख्शते हैं, पर्टिकुलर उस दिन के लिए अभिषेक ताजा देते हैं, नई करुणा देते हैं। ये बात प्रभु ने मेरे दिल में डाली कि इन्हें प्रैक्टिस करा आवाज सुनने की। अगर ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री के अंदर कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल सेशन दे इन्हें, थ्योरेटिकल नहीं। ज्ञान इनके पास बहुत है, ऑलरेडी दे नो। कई लोगों ने तो बाइबल स्कूल किए हुए हैं, कई लोगों ने थियोलॉजिकल कॉलेज किए हुए हैं, कईयों ने मास्टर डिग्री ली हुई है, बट दे डोंट हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। एक बार अगर आपने सुन लिया तो आपकी मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको अपना समय तय करना है अकेले में, और अकेले में जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप उसकी नजदीकी में आ जाएंगे। फिर वो नजदीकी एकदम से क्लोजनेस में आएगी, फिर क्लोजनेस में आके आप धीमी आवाज को पहचानने लगेंगे। आप जब तक सुन न लें आपका मन नहीं भरेगा, सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप, आपको लगेगा कुछ कमी रह गई कहीं पर भी। सो मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं कि प्रभु पवित्र आत्मा बोलते हैं, आप प्रभु पवित्र आत्मा की वाणी को सुने। जब आपकी ये प्रैक्टिस शुरू होगी तो प्रार्थना आपको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा। यू विल रन टू रूम, टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, बिकॉज यू नो moment I close the door, I will meet my daddy. Daddy is already there. He is waiting you. Oh, he is waiting you. और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसके आप उपस्थिति के अंदर एंटर कर जाएंगे, और फिर घंटों आप बातचीत कर सकते हैं। आपका मन नहीं करेगा प्रार्थना आराधना को रोकने का, मैं आपको सच बता रहा हूं। एंड यू विल हियर द वर्ड ऑफ गॉड। Really you want to hear the word of God? Listen. जो लोगो वर्ड है उससे अपने आप को भरना पड़ेगा। आपके अंदर लोगो होना चाहिए। इसका मतलब आप बाइबल के साथ समय बिताएंगे, एंड यू हैव टू ओबे द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैं बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं। इफ यू ओबे the written word of God, then only you can hear the spoken word of God. I am repeating, listen. When you obey the written word of God, then only you can hear the spoken word of God. अगर आप प्रभु का बोला हुआ वचन सुनना चाहते हैं, रेमा सुनना चाहते हैं, तो मुझे और आपको पहले लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। You cannot love God without loving His word. ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहें प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं
और फिर आप उसके वचन से प्यार ना करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर आप ये कहते हैं कि आई लव जीसस, आई एम द लवर ऑफ जीसस, इफ यू आर सेइंग दिस, इट मीन्स you are the lover of the Bible also. If you are a lover of Bible, it means you are lover of Jesus. So be a Bible lover. Son of God is the word of God. Hello. The name of the Son of God is the word of God. Revelation 19:13 says. तो आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो अगर आप ये कहते हैं मैं वचन से प्यार करता हूं, तो आप यीशु को प्यार करते हैं। अगर आप कहते हैं मैं यीशु को प्यार करता हूं, तो आप वचन को भी प्यार करते हैं। मीन्स आप बोर नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, आपका मन लगेगा। और नीति वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। ही विल लिव इन द पीस। तो स्पेंड टाइम विद द वर्ड, स्पेंड टाइम विद द Holy Spirit, hear the word, hear the Holy Spirit, you see what type of changes come into your life. Praise the Lord. So, हम इसको आज यहीं पर रोकेंगे। कल मैं इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा। And I will try to say कि भाई कई लोग चाहते हैं कि हम प्रभु की आवाज सुने, चाहते हुए भी वो नहीं सुन पाते। तो क्यों नहीं सुन पाते? हम उसको इस तरीके से समझेंगे, मतलब कान को थोड़ा घुमा के पकड़ेंगे, शायद समझ में आ जाए। तो दोनों तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आइए हम प्रभु के वचन की महिमा करें। वचन तेरा हे प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, अमर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, अमर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। ला 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 ला। आइए आत्मा में प्रार्थना करें और सेशन को समाप्त करें। और ला 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 बशिंदरी दले नेवे शिखेरे दिलीना बाबा बाकोरी दला राला निखिलीना बाबा हुशिखोरो रोदला न हंदरी दले नेबे शिखेरी दली न खाले नेबे सबाराला न हखबरी दलालवा रिंदोरी दले नेबे बेबे शिखोरो लालबा रहन्नरी दलिन में रीदलाना हखबरे और लाला बशी कराननबा राला बशिंदुरो होरियला नबशखरबा कोरलनि विशिंदरी दलो शिखरदनहन नरी बला शेखरे दिलिनवे रोला न खाली न बलनबा राब्रारी क्लवला हम्बरो शोखरह न खीली न हखबरे खीरला बाबरी दला अंदरी शखोरुदला।
In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit, for ministering us. You're so good to us, Lord. Thank you. We want to hear your voice. Teach us. Teach us, Lord, how to hear you. Lord, I will spend time at your feet. I will come to you and I will shut the door and I will meet you and you will teach me. Oh, I will not ask anything from you, Holy Spirit. You know the desire of my heart. Lord, I want to hear you. Yes, I want to hear you. Open my ears, Lord. Open my eyes, Lord. You speak, I will hear. And Lord, when I speak, please you hear. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for leading us. In Jesus' glorious name. Amen. Amen. ओके, आज का होमवर्क लीजिए. आज का होमवर्क होगा जॉन चैप्टर 14 वर्स 26. यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 26वां वचन. क्या लिखा है वहां पर? हम लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे. वहां लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा. जॉन चैप्टर 14 verse 26 says, the helper means Holy Spirit, whom the Father will send. When he come, he will teach you all things and he will remind you all the things. Okay, so you have to remember this verse. God bless you. Amen. पिता का, यीशु का अनुग्रह, पिता का प्यार, यीशु पवित्र आत्मा की संगति मुझे साथ तुम्हारे साथ युगान युग